Good afternoon. So today's our topic is lower segment caesarean section. First of all, here we see the meaning of caesarean. It is derived from Latin verb cedere, which means to cut, and lower segment is basically related with the lower segment of the uterus. So cut made on the lower part of the uterus to extract the fetus is called as lower segment caesarean section. Caesarean section basically is of two types, upper segment or classical one and lower segment caesarean section. Both these have their own merits and demerits that we will see in later slides, but the lower segment has more merits as compared to the upper segment. So here we will deal with the lower segment caesarean section. And yes, in the previous time caesarean section was only done on the woman who is dead or dying to have a in a hope to have a live baby, राइट जिसका कि हम रेफरेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन मूड गर्भ उदर विपाटन. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स definition. It is an operative procedure whereby the fetus after the end of 28th week are delivered through an incision on the abdominal and uterine walls is called as a caesarean section. Nowadays its incidence is getting rising day by day. So here are some factors for its steady rise. That is, first one is identification of at high risk fetus before term, that may be IUGR or preterm baby. Next is the identification of at risk mother. Mother may be having any complication related to gynecological problem, obstetric or medical complication in which normal delivery is more risky, so patient goes for caesarean section. Next one is the wider use of repeat caesarean section in cases with previous caesarean delivery with the fear of scar rupture as of the previous caesarean section. Patient usually go for repeat LSCS in term of a second delivery. Next one is the rising rate of induction of labor and then its failure. Next is the decrease in vaginal breech delivery. So here breech delivery goes in the abnormal labor. This presentation is not in the normal labor, it is in the abnormal. So in case of abnormal, that is vaginal breech delivery, there are more chances for the injury to the lower parts. So it is better nowadays, it is better to avoid vaginal breech delivery. In that case, what is more preferable? Caesarean section. Patient also goes for the caesarean section. Next is the increased number of women with age more than 30 years at conception and associated medical complication. Yes, as the age increases, we all know there are more chances for the infertility. 30 ईयर प्लस अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा. एंड उसके लिए वो फीटस जो है वो क्या होता है? प्रीशियस. सो patient or the parents do not want to take any risk, so they already go for elective LSCS, and also there are more medical complications as the age advances. Next is the wider use of electronic fetal monitoring and increased diagnosis of fetal distress. With the help of fetal tochocardiograph, we can easily diagnose fetal distress. If there is fetal distress, then no need to wait and watch, just go for caesarean section. Last one, caesarean delivery on demand, that is elective one. Next are the indications for caesarean section. यहाँ पे दो टाइप्स की इंडिकेशंस बताई गई हैं. वन इज़ एब्सोल्यूट वन एंड अदर इज़ relative. Absolute means where no chance of a normal delivery, we have to go for a caesarean section. And in relative one, there are chances of vaginal delivery, but it is
harmful or dangerous to the both mother and fetus. So सबसे पहले we will see absolute indications, that is first one, central placenta previa. Placenta where is it is present just at the internal os. At that time vaginal delivery is not possible. नेक्स्ट इज़ द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और सिवियर सीपीडी, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, सिवियर है. और पेल्विस भी कौन सा टाइप है, लाइक एंड्रॉयड टाइप, जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो ही नहीं सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द पेल्विक मास कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन. एनी सर्वाइकल और ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड है नीचे की तरफ जो कि क्या है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा. नेक्स्ट एडवांस्ड कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, सेम यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर सर्विक्स के ऊपर क्या है, कार्सिनोमा. नेक्स्ट वन इज़ द वजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. देयर में बी एट्रेजिया और देयर में बी स्टेनोसिस. इट कैन बी प्राइमरी और इट कैन बी सेकेंडरी. नेक्स्ट इज़ द रिलेटिव वंस. प्रीवियस ईयर्स हमने पढ़ लिया ऑलरेडी. फीटल डिस्ट्रेस है, सर्वाइकल डिस्टोशिया है, APH है, प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शियो, माल प्रेजेंटेशन है, फेल्ड सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर, फेलियर टू प्रोग्रेस इन लेबर, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री विद रिकरेंट फीटल वेस्टेज, पेशेंट हैविंग रिकरेंट मिसकैरेज. तो उस टाइम पे भी क्या है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो पेशेंट यूजुअली गो फॉर इलेक्टिव LSCS. अदर वन इज़ द हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर. वही एनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन अगर पेशेंट को है तो भी क्या है, हम किसके लिए जाएंगे, सिजेरियन सेक्शन के लिए. इनमें ऐसा नहीं है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती, बट हो सकती है, बट इट इज़ मोर, इट कैन बी डेंजरस फॉर फीटस. लाइक अगर पेशेंट को हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स है, प्रीक्लैम्शिया है, एक्लैम्शिया है, तो इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पेशेंट हैज़ टू बियर डाउन. बाय चांस पेशेंट जो है वो एक्लैम्शिया में चली गई, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, अनकॉन्शियस, शी इज़ नॉट एबल टू बियर डाउन, जिससे क्या है, बेबी स्टक हो जाएगा इन द पेल्विस एंड दैट केस इज मोर डेंजरस. सो प्रेफरेबली गो फॉर relative indication and go for cesarean section. Next is the medical and gynecological disorders, same uncontrolled diabetes, any heart disease, any mechanical obstruction due to benign or malignant tumors or following repair of a vesicovaginal fistula. Next comes the time of operation. दो तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक है इलेक्टिव एंड अनदर वन इज़ द एमरजेंसी LSCS. इलेक्टिव मीन्स जिस टाइम पे हमने खुद से अपनी इच्छा से टाइम पे हम अपना सीजरियन सेक्शन करवाना चाहते हैं, एंड अनदर वन इज़ द एमरजेंसी. इट इज़ डन ड्यू टू एनी अक्यूट ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसी. सो यहाँ पे इलेक्टिव देखेंगे हम, ऑपरेशन डन एट pre-arranged time during pregnancy to ensure the best quality of obstetrics, anesthesia, neonatal resuscitation and nursing services. टाइमिंग, इसके लिए भी हमें टाइमिंग ज़रूर देखनी है. बेसिकली मैच्योरिटी, फीटस मैच्योर है या फिर मैच्योर नहीं हुआ है अभी. तो मैच्योरिटी सर्टन है तो ऑपरेशन डन अबाउट 1 week प्रायर टू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. एंड इफ़ मैच्योरिटी इज़ अनसर्टन, so we will go for firstly for amniocentesis to CLS ratio. ये क्या है, हमारे सर्फेक्टेंट हैं, इनकी रेशो देखनी है हमें, जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा कि फीटस के लंग्स जो हैं वो मैच्योर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं. अदरवाइज वी हैव टू वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर एंड देन गो फॉर सिजेरियन सेक्शन. नाउअडेज UST इज़ डन इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, जिससे कि हमें पता चल जाता है फीटस हैज़ गॉट मैच्योर्ड इनफ और नॉट. बेबी वेट शुड बी एट लीस्ट 2.5 kg. दैट मीन्स फीटस हैज़ गॉट मैच्योर इनफ फॉर इलेक्टिव LSCS. नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, जो कि हमने पहले देख लिए हैं, लोअर सेगमेंट एंड क्लासिकल. पेकुलरिटीज ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्राइन सेगमेंट. Here are some peculiarities. First one is the peritoneum is loosely attached to the uterus.
ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। लोअर सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे पेरिटोनियम जो है वो लूजली अटैच्ड होता है यूट्रस के साथ। नेक्स्ट वन इज द कंट्रैक्शन इज लेस देन इन अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। लोअर सेगमेंट इज लेस मस्कुलर, thin muscular layers, healing is more efficient and sutures are intact enough. Here are some merits and demerits, lower segment and classical one. सबसे पहले क्या है, टेक्निक। टेक्निक जो है वो लोअर सेगमेंट की क्या है, वो स्लाइटली डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल वन, बट हेयर ब्लड लॉस इज़ वेरी लेस। और क्लासिकल में क्या है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इन लोअर सेगमेंट वॉल इज़ थिन सो अपोजिशन इज़ परफेक्ट। वॉल यहाँ पे क्या है, थिन है, जिससे क्या हम जब सूचर्स लगाएंगे तो वॉल्स जो आपस में अपोज ईजिली हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल वन। नेक्स्ट इज़ द परफेक्ट पेरिटोनाइजेशन इज़ पॉसिबल, इन केस ऑफ क्लासिकल नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज़ टेक्निकली डिफ़िकल्ट इन प्लेसेंटा प्रीविया और ट्रांसवर्स लाई। इफ़ देर इज़ प्लेसेंटा प्रीविया, उस टाइम पे हम लोअर सेगमेंट पे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे उस टाइम पे, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन किया जाता है इफ़ देर इज़ एनी प्लेसेंटा प्रीविया और ट्रांसवर्स लाई ऑल्सो। नेक्स्ट इज़ द पोस्ट ऑपरेटिव hemorrhage and shock very less as compared to classical. Chances of peritonitis is less in presence of uterine sepsis. There are chances more. Peritoneal adhesions and intestinal obstruction are very less. Recovery is better. Less incidence of morbidity and mortality as compared to classical one. Next, wound healing. Scar is better healed because of perfect muscle apposition due to thin margins. Minimal wound hematoma, the wound remains quiescent during healing process and chance of gutter formation is unlikely. Gutter formation basically is accumulation of fluid. तो लोअर सेगमेंट में क्या है, इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट नहीं होता है, जिससे कि फर्दर इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं इन केस ऑफ लोअर सेगमेंट, बट देयर आर मोर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गटर इन द क्लासिकल वन, जिससे क्या है फर्दर पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं। ड्यूरिंग फ्यूचर प्रेगनेंसी स्कार रप्चर इज़ वेरी लेस एंड देयर आर मोर रिस्क ऑफ स्कार रप्चर इन केस ऑफ क्लासिकल वन। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। नेक्स्ट कम्स द इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन। तो यहाँ पे कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट्स बता रखे हैं जो कि हमें सिजेरियन सेक्शन के टाइम पे यूज़ होते हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ देम जो है कि आप प्रैक्टिकल क्लास में पढ़ चुके हो, लाइक टॉवल क्लिप, स्पॉन्ज होल्डिंग फोरसेप्स, एलिस फोरसेप्स आर्टरी, टूथड डाइसेक्टिंग फोरसेप्स, नीडल होल्डर, बीपी हैंडल, ब्लेड, डॉइंस रिट्रैक्टर, मायो सीजर, किडनी ट्रे, इलेक्ट्रिक कॉटरी एंड क्लैम्प्स। यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनका काउंट बेसिकली बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन एंड आफ्टर द एंड ऑफ द ऑपरेशन काउंट शुड बी सेम। हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। इंस्ट्रूमेंट जितने भी यूज़ हुए हैं, टोटल हमने एक ट्रे में जितने इंस्ट्रूमेंट लगाए थे ऑपरेशन शुरू होने से पहले, उनका काउंट सेम होना चाहिए ऑपरेशन ख़त्म हो जाने के बाद भी। हमने कई एग्जांपल्स देखी हैं, सुना होगा आपने टीवी में कि डॉक्टर ने ड्यूरिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर कुछ मतलब सीजर वगैरह अब्डोमेन के अंदर ही छूट गई है, तो वो उसके पीछे क्या नेग्लिजेंसी होगी, वी हैव नॉट सीन इट्स काउंट एट द एंड। काउंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ बोथ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मॉब्स। जो जितने भी मॉब यूज़ हुए हैं उन सब का काउंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आर द प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्रीलिमिनरीज। पेशेंट हमारे पास आया है किसी भी ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए, हमें सबसे पहले उसको पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका पार्ट प्रिपेयर, देन गो फॉर सोप वाटर अनीमा, देन गो फॉर इंजेक्शन TT 0.5 cc, then go for injection xylocaine its test dose।
and also antibiotic for prophylactic purpose. These all are necessary in any operative procedure, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, सभी में इसका यूज़ ऐसे होना ही होना है. सो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो बता रखा है. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, हाई रिस्क कंसेंट. हमें पेशेंट के आते ही सबसे पहले क्या लेना है, अगर वो आइदर फॉर वजाइनल डिलीवरी और फॉर LSCS, कंसेंट इज़ मस्ट. तो उसमें पेशेंट के साइन और साथ में उसके गार्डियन के साइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है. एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपरली क्रॉस मैच्ड ब्लड. Next are the antacid given orally before transferring the patient to the OT, ranitidine 1 night before and is repeated 1 hour before surgery. Metclopramide is given to increase the tone of the lower esophageal sphincter. Bladder should be empty by Foley's catheter. Foley's catheter उसको लगा दिया जाता है. FHS should be checked once more at this stage and pediatrician should also be available. सो जब हम पेशेंट को OT टेबल पे लेटा देते हैं उस टाइम पे भी हम क्या है, पेशेंट का सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फीटल हार्ट साउंड. नेक्स्ट एनेस्थीसिया दैट मे बी स्पाइनल, एपिड्यूरल और जर्नल. पोजीशन ऑफ द पेशेंट इज जर्नली डॉर्सल. इन सम केसेस टू मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ विनल कावल कंप्रेशन हम क्या करते हैं, उसको 15 डिग्री का टिल्ट दे देते हैं टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड. Next is the antiseptic painting. Abdomen is painted with povidone iodine solution. It depends upon the practice of the doctor. तो हमें पेंटिंग के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली स्पिरिट, सेवलोन एंड बीटाडीन. पेंटिंग करने की भी एक टेक्निक होती है जो कि हम प्रैक्टिकल क्लास में कर चुके हैं. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले spirit यूज़ करना है, then we will use Savalone and then go for a betadine solution. Now comes the incision on the abdomen. So either a vertical or transverse skin incision can be given. अगर vertical देना है तो कहाँ देंगे हम, infra umbilical midline और paramedian. Para means slightly away from the midline. Next is the transverse one. Nowadays हम ट्रांसवर्सली कौन सा इंसीजन यूज़ करते हैं, फेनिशियल इंसीजन दैट इज़ मेड 3 सेंटीमीटर अबव द pubic symphysis. See here is the picture. This is the phalangeal incision. It is not horizontal, it is somewhat concave. इसे क्या बोला जाता है, phalangeal incision. इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, दे रखे हैं यहाँ पे. पोस्ट ऑपरेटिव कंफर्ट इज मोर. Fundus of the uterus can be better palpated during immediate post-operative period. Less chance of wound dehiscence, less chance of incisional hernia and cosmetic